Hello dear students, a very warm welcome to my English video class for 7th July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Take care, stay indoors, stay home and stay safe children. Lesson number 3 we are doing in English course book, Wordsworth English Reader. And lesson number 3 is Little Red Hen. Okay, in this lesson we have read a story which is about 4 friends, a little red hen, one lazy dog, one sleepy cat and a noisy duck. As the words describe the qualities of these 3 animals, and the little red hen was very hardworking. तो कैसे उसको वीट के ग्रेन्स मिले, उसने उनको प्लांट किया, फिर सारा प्रोसेस उसने खुद किया. इस स्टोरी में हमने इसके बारे में पढ़ा. अभी तक तो स्टोरी आई एम श्योर सबको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो गई होगी, बिल्कुल सबको याद होगी कि क्या स्टोरी है. एंड वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस नाउ. ओके, सो एक्सरसाइजेस में हमने क्या किया. फर्स्ट वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, वी हैव डन स्पेल वेल वर्ड्स. ठीक है, उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग मैंने करा दिया है. And now we have started with the exercises. We have completed comprehension exercises. Comprehension में हमने question answers किए, fill in the blanks किया and match the words किए. Then in grammar we learnt about naming words. Grammar में हमने naming words के बारे में थोड़ा पढ़ा कि naming words किसे कहते हैं, what are naming words, and उस पे base हमने exercise किया. Then in word building we did male and female gender. Female, just like all living beings, they are either male or female. So all of them have a name. चाहे मेल जेंडर है उसका भी नाम होगा, फीमेल जेंडर है उसका भी नाम होगा. ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग में हमने मेल एंड फीमेल नेम्स किया ऑफ लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. एंड नाउ टुडे चिल्ड्रन आई विल स्टार्ट विद लिसनिंग एक्सरसाइज. लिसन एंड से अलाउड. ओके, this is page number 28, this exercise. So turn to page number 28 in your English course book. Now children, we would be doing fun with the sound of I. इसके पहले वाले लेसन में हमने क्या पढ़ा था, fun with the sound of E. ठीक है, कि डबल ई एंड ई ए का साउंड सिमिलर है, ई ए एंड ई का साउंड डिफरेंट है. तो उसमें हमने पढ़ा था कि fun with the sound of E. ठीक है ना. Now here we will learn fun with the sound of I. Now listen to the sound of I as in sit. ठीक है. Now this is the sound of I. Now let me write. This is S-O-U-N-D, sound of I. ठीक है. Now listen to the sound of I as in we are doing this exercise children, this one. Okay, so listen to the sound of I as in sit, fish, and the sound of Y as in happy, lady. Do they sound similar? The later sound represents long I sound. Now see children, what is the difference here? When you say sit, when you say fish, S-I-T, sit, F-I-S-H, fish. Okay, this is the sound of I. Here we have I in the spelling. यहाँ पे spelling में क्या है, I है. S-I-T, sit, F-I-S-H, fish. तो ये कौन सा साउंड है? दिस इज साउंड ऑफ ई, छोटी ई जो होती है हिंदी वर्णमाला में, जो छोटी ई है. ठीक है, छोटी जैसे इमली बोलते हो और आप ईख बोलते हो ना, ई से इमली, ई से ईख. तो दोनों के साउंड में डिफरेंस है. जो छोटी का साउंड होता है दैट इज अ स्मॉल साउंड, एंड बड़ी का जो साउंड होता है दैट इज अ लॉन्ग साउंड. ई ई जैसे कैसे बोलते हो, जैसे तितली शब्द है, उसमें छोटा ई भी है, बड़ा ई भी है. तो तीतली नहीं बोलते हो ना, तितली. ठीक है, तो हियर द साउंड ऑफ आई इज द साउंड ऑफ छोटा ई, स्मॉल साउंड. फिश, फिश नहीं बोलते, सीट नहीं बोलते, वी से फिश. सिट.
तो द साउंड इज ई, छोटा ई जो होता है. ओके, नाउ व्हेन वी से लेडी, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, LADY, लेडी. ठीक है, साउंड सिमिलर है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? हियर द साउंड इज लॉन्ग ए. यहाँ पे जो साउंड है हैप्पी, लेजी, दिस इज द साउंड ऑफ लॉन्ग ई. जो लॉन्ग वाला ई होता है दैट इज ये वाला ई, जिसको हिंदी में बड़ा ई बोलते हैं. ठीक है, ठीक है ना. सो हैप्पी एंड लेजी. डिफरेंस यू कैन मेक आउट. सिट, फिश, हैप्पी, लेजी. ठीक है, तो देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो. सिट, फिश, बिट, लिफ्ट. Okay, these are all sound of छोटा ई. Happy, lady, money. I जहां पर है that is the sound of small e, that is a small sound, and जहां पे y है that is a long sound. Okay, वो long sound है जो बड़े ई का sound होता है. Okay, so the later sound represents long I sound. LATTER later means बाद वाला. ठीक है, so listen to the sound of I as in sit, fish, and Y as in happy, lady. मतलब जो I का साउंड है वो sit में और fish में देखो क्या है, and happy और lady में क्या है. ठीक है, do they sound similar? क्या वो similar sound करते हैं? The later sound represents long I sound. थोड़ी सिमिलैरिटी है, बट द लेटर साउंड दैट इज द साउंड ऑफ वाई. जहां पे वाई है दैट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग आई. वहां पे जो बड़ी की मात्रा लॉन्ग आई. ठीक है, जो बड़ी की जो मात्रा होती है ई और ई, तो वहां पे वाई जहां पे इट साउंड्स एज लॉन्ग आई. उसका जो साउंड है वो लॉन्ग आई वाला साउंड है. ठीक है, थोड़ी सिमिलैरिटी है, बट द डिफरेंस इज दैट आई इज स्मॉल ई एंड वाई इज लॉन्ग ई. ठीक है, now come to page number 29. Page number 29, this page. Okay, now here you can see a tree and some words are given. Now what you have to do is fill in the blanks in the word tree with similar sounding words from the box given below. Some words are given in the box. Okay, and you have to write them accordingly. इस वर्ड ट्री में हमें अकॉर्डिंगली वो वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ओके, सिमिलर साउंड वाले वर्ड को हमें उस कॉलम में लिखना है. फाइन, सो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स इन द वर्ड ट्री. दिस यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ चिल्ड्रन. फिल इन द ब्लैंक्स इन the word tree with similar sounding words. ठीक है, from. अच्छा, ओके चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग टिल वर्ड्स ओनली बिकॉज मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है. आई हैव टू राइट द वर्ड्स एज वेल एज आई हैव टू मेक द ट्री ऑल्सो. ठीक है, तो मैं यहीं तक लिख रही हूँ. द वर्ड्स आर LAZY, लेजी, चिन, लिक, हनी, बेबी and bill. Okay, now the word tree is like this. ये ट्री के ऐसे रूट्स है and this is the word tree. Okay, set. Then how many words? 1 2 3. 1 2 3. And this side is HAPPY, happy. Here we have to write sit and happy. Again 3 words. Okay,
Now children, we have to write the similar sounding words in the appropriate column. Okay, that means the words with small e sound. ठीक है, जो words sit के जैसे sound करते हैं उन्हें हमें इस साइड में लिखना है, and the words which sound like happy we have to write them here. ठीक है, this is to make you understand the difference between the two sounds. ठीक है, आपको ये एज आई कीप टेलिंग इंग्लिश में सेम लेटर का साउंड किसी वर्ड में कुछ होगा, किसी वर्ड में कुछ होगा. ठीक है ना. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जहां पे भी आई आएगा द साउंड विल बी स्मॉल ई ओनली. ठीक है. सो यू हैव टू राइट द वर्ड्स विच साउंड एज सिट इन दिस कॉलम एंड द वर्ड्स विच साउंड एज वाई इन दिस कॉलम. इससे आपको समझ में आएगा कि स्मॉल ई एंड स्मॉल ई का छोटी ई वाला साउंड, स्मॉल आई साउंड एंड लॉन्ग आई साउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके. सो सिट. नाउ लेजी वर्ड है. फर्स्ट वर्ड इज लेजी. व्हाट इज द साउंड? इट इज द साउंड ऑफ. सो हियर वी हैव लर्न दैट द वर्ड्स विच हैव आई दे हैव स्मॉल ई साउंड, स्मॉल आई साउंड, एंड द वर्ड्स विच हैव वाई दे हैव लॉन्ग साउंड. ठीक है. तो लिक. सिट है लेजी, LAZY. लेजी तो हम नहीं कहते ना, वी से लेजी. ठीक है. तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? साउंड ऑफ लॉन्ग ई, लाइक हैप्पी. तो यहाँ पे लेजी को हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट लेजी हियर इन दिस कॉलम, लेजी. देन नेक्स्ट इज चिन. चीन नहीं बोलते ना, चिन, वी से चिन. ये चिन है. ठीक है ना. दिस इज आवर चिन. तो चिन किस कॉलम में आएगा? चिन साउंड्स एज सिट, chin. So we will write chin here, CHIN, chin. Then lick. Lick मतलब किसी चीज को चाटना, like you lick an ice cream. जो स्टिक वाली आइसक्रीम खाते हो तो उसको लिक कर करके चाट के तो खाते हैं ना. So that is licking the ice cream. So lick मतलब चाटना. So lick, we do not say leak, we say lick. ठीक है. लीक वर्ड इज डिफरेंट, दैट इज LEAK, लीक. लीक करना मतलब कहीं से निकल जाना कुछ. So that is leak. This is LICK, lick. Okay. So we will write it here, lick, LICK, lick. Then honey, HONEY, honey. यहाँ पे Y है and the sound is honey. Sound is long I, honey. So we will write it here, HONEY, honey. Baby. Again, we do not say baby, we say baby. हिंदी में भी. अच्छा, पहले इंग्लिश में लिख दूं मैं, बेबी एंड लास्ट वर्ड BILL, बिल. वी डू नॉट से बील, वी से बिल. सो BILL. ये जितने वर्ड्स हैं, व्हेन यू इफ यू राइट दीज वर्ड्स इन हिंदी, तो आप देखोगे कि जितने आई वाले वर्ड्स हैं उसमें छोटी की मात्रा लगेगी और जो वाई वाले वर्ड्स हैं उसमें बड़ी की मात्रा लगेगी. जैसे सिट. सिट को जब आप हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे ये वाली मात्रा लगाओगे. ठीक है. सीट वर्ड भी होता है, सीट, बट दैट इज SEAT, सीट, जहां पे आप बैठते हो. दिस इज माई सीट, जहां पे मैं बैठता हूँ. ठीक है. जैसे चिन. चिन को आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? छोटी की मात्रा, चिन. ठीक है. लिक, लिक. देन बेल. ये सारे वर्ड्स में आप देखोगे कि अगर आप हिंदी में इनको लिख रहे हो तो सब में कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी की. और इसमें अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? हैप्पी, बड़ी की मात्रा. लेजी, अगेन बड़ी की मात्रा. हनी, बड़ी की मात्रा. बेबी, बड़ी की मात्रा. ठीक है. तो आई वाले वर्ड्स में द साउंड इज स्मॉल आई, दैट इज छोटा ई वाला साउंड है, और वाई वाले वर्ड्स में बड़ा ई का साउंड है. ठीक है. सो दिस यू डोंट हैव टू राइट चिल्ड्रन. इसको आप अपनी बुक में लिखो. दिस इज बुक एक्सरसाइज, वी हैव टू डू दिस इन द बुक इटसेल्फ. ठीक है. सो राइट दीज वर्ड्स इन द ट्री, वर्ड ट्री, एंड देन वी विल प्रोसीड. ठीक है. राइट दिस. It should not take long. बहुत थोड़े से वर्ड्स है. All the words
with I will be written in this column, first column, and all the words with Y will be written in this column, second one. Okay. Okay. Now next is think and write. ठीक है. Now listen. अभी हमने क्या पढ़ा? Sound of I, sound of Y. Now listen to the sound of I as in kite and sound of Y as in cry. Don't they sound different from the sound of I and Y as in sit and happy? अभी जो हमने पढ़ा sit and happy, छोटा ई बड़ा ई. ठीक है. I वाले वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा? छोटा ई, सॉरी दिस इज स्मॉल ई, एंड इधर में हमने पढ़ा बिग ई. Now see the word kite. Kite. Again, now this word also has I. Kite में भी क्या है? I. But we do not say kite. We say kite. यहाँ पे क्या है? Long E है. Kite, बड़ा E. Kite. ठीक है? And cry. We do not say cry. Cry. अभी यहाँ पे क्या हो गया? रिवर्स हो गया. यहाँ पे सिट में जहां पे आई था वहां पे स्मॉल साउंड था, स्मॉल ई का, एंड जहां पे वाई था वहां पे लॉन्ग ई वाला साउंड था. नाउ सी दिस वर्ड KITE, काइट. इसको हिंदी में हम लिखेंगे तो काइट. ठीक है. दिस इज लॉन्ग साउंड. एंड क्राई, हिंदी में लिखेंगे तो क्राई. दिस इज छोटा ई. नाउ सी हियर, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया यहाँ पे, है ना. यहाँ पे आई वाले वर्ड में छोटा ई था, यहाँ पे आई वाले वर्ड में बड़ा ई हो गया. यहाँ पे वाई वाले वर्ड में बड़ा ई था, यहाँ वाई वाले वर्ड में छोटा ई हो गया. ठीक है. तो उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया. सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आई वाले जितने वर्ड्स हैं सब में सबका साउंड सेम होगा. आई के साथ ही सम वर्ड्स विल हैव स्मॉल ई साउंड, सम विल हैव लॉन्ग ई साउंड. वाई के साथ सम वर्ड्स विल हैव लॉन्ग ई वाला साउंड, और कुछ वर्ड्स का स्मॉल ई वाला साउंड होगा. ठीक है. सो डू दे साउंड डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ आई एंड वाई? मतलब जैसे अभी आपने ये काइट में एंड क्राई में, ठीक है, इसमें हमने देखा आई एंड वाई का साउंड. ओके. सो वी कैन नॉट से कि सारे आई वाले वर्ड्स का साउंड स्मॉल ई होगा, छोटा ई वाला साउंड होगा, और सारे वाई वाले वर्ड्स में बड़े ई का साउंड होगा. ठीक है. यू कैन मेक आउट द डिफरेंस. तो यहाँ पे जो काइट एंड क्राई में जो आई एंड वाई का साउंड है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ आई एंड वाई हियर. यहाँ पे आई का साउंड है बड़ा ई, और यहाँ पे आई का साउंड है छोटा ई. यहाँ पे वाई का साउंड है छोटा ई, यहाँ पे वाई का साउंड है बड़ा ई. सो ऑल द वर्ड्स with I will not have the same sound. All the words with Y will not have the same sound. ठीक है. Now what you have to do is add an I or Y to the following words and then say aloud each word. Some words are given but the spelling is not complete. You have to complete the spelling by I or Y. ठीक है. And then say them aloud. Say them aloud. Then मतलब फिर उसको आप बोल करके देखो कि दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है. ओके. सो दिस आई होप एवरीवन हैज रिटन. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. इसको अभी मैं इरेज कर रही हूं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस थिंक एंड राइट. ओके. सबने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा ना. इसीलिए इट इज सेड दैट इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. ठीक है. एक ही लेटर का अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड हो सकता है. ठीक है ना. वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज GO गो एंड DO डू. ओके. PUT पुट एंड BUT बट. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, क्योंकि हर एक अलग अलग सेम लेटर का अलग अलग वर्ड्स में साउंड डिफर कर सकता है. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा साउंड ऑफ आई एंड साउंड ऑफ वाई. नाउ थिंक एंड राइट. ठीक है. THINK, थिंक एंड राइट. ठीक है. थिंक एंड राइट मीन्स सोचो और लिखो. मतलब अभी आपने पढ़ा
I'm sure you have understood the difference. So accordingly, you have to complete the word, complete the spelling with I or Y. Okay. Now add an I or Y to the following words. Add an I or Y to the following words and then say them aloud. So the words are N dash GHT, then FL dash, then WRTE and TR dash. Okay. Now N, यहाँ पे स्पेलिंग आई एम श्योर सबको समझ में आ रही होगी. क्या लिखोगे? NIGHT और NYGHT. What is the spelling of night? The spelling of night is NIGHT, night. ठीक है. We do not say night, we say night and spelling is I. तो यहाँ पे I का साउंड जो है वो छोटा वाला साउंड है, लाइक बेल, फिल. ठीक है ना. फिश. So NIGHT, then FLY, fly. FLY, fly. WRITE, right, and TRY, try. So like here, I has got this small e sound और Y जो है उसमें long e वाला sound है. NIGHT, night. FLY, 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 fly. ठीक है ना. WRITE, right, और TRY, try. Okay. Night, fly, right, try. Night, fly, right and try. Okay. Now turn the page, children. Now we would be doing talk time. ठीक है. Page number 3030. Talk time is to improve your communication skill. ठीक है ना. इससे कुछ एक वर्ड्स को यूज करके हाउ डू यू से स्मॉल सेंटेंसेस, कुछ एक स्मॉल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हो एंड हाउ डू यू से देम. सो टॉक टाइम इज बेसिकली टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल. ठीक है. टॉक मतलब क्या है? टॉक माने बात करना. नाउ हियर it is in this talk time we are going to learn the use of it is or it is not. ठीक है. yes it is मतलब हाँ ऐसा होता है, ये है, and no it is not, ऐसा नहीं है. okay. so there are two boys. ठीक है. you can play this game in pairs or in group. ठीक है. you can play, ये आप अपने घर में अपने थोड़े से आपसे जो एल्डर, आप लोग से छोटे जो भाई बहन होंगे उनके साथ तो आप नहीं खेल पाओगे, बट यू कैन डेफिनेटली प्ले दिस गेम विथ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर. ठीक है. अभी देयर आर टू चिल्ड्रन. ठीक है. जैसे वो गेस वाला गेम खेलते हो ना, कि कुछ कुछ हिंट्स देते जाते हैं, आपको अपने फ्रेंड से बोलना है, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. जो भी चीज के बारे में आप बता रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा क्या ऐसा होता है, तो अगर होता है तो इसे यस इट इज, और अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट. सो हियर दीज टू बॉयज आर प्लेइंग दिस गेम एंड द बॉय हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस, उसने क्या इमेजिन किया है, उसने अपने फ्रेंड को जो हिंट्स दे रहा है वो दैट इज अबाउट एन एलिफेंट. इट इज नॉट दैट कि आप कोई एनिमल के बारे में बताओ. यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो जिसके बारे में आप कई सारे हिंट्स दे सकते हो. ठीक है. नाउ द फर्स्ट, उसने दिस बॉय, ये जो ग्रीन पहना हुआ है, ये आप देख रहे हो ना कि ये ही इज, उसने एक एलिफेंट सोचा हुआ है अपने दिमाग में. द गेम विच दे आर प्लेइंग, तो द बॉय हु इज वेयरिंग दिस ग्रीन शर्ट, उसने अपने दिमाग में एक एलिफेंट सोचा है एंड नाउ ही इज आस्किंग हिज फ्रेंड. ठीक है. अभी उसने अपने फ्रेंड को बोला कि नाउ यू गेस. ठीक है. गेस में पहले शायद बताया होगा कि इट इज एन एनिमल. ठीक है. तो अब वो ने ये भी नहीं बताया, सॉरी. नाउ फर्स्ट थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि वेदर इट इज एन एनिमल और फ्लावर. नहीं तो ऐसे तो वाइल्ड गेस करते रहेंगे कि
कि एनिमल हो सकता है, कि फ्लावर हो सकता है, कि कोई फ्रूट हो सकता है, कि कोई ट्री है, और इज इट समथिंग अराउंड अस. ठीक है, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड द गेम. फर्स्ट द बॉय हु इज वेयरिंग दिस येलो शर्ट, ही इज आंसरिंग. वो उसको गेस करना है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, इज इट एन एनिमल? क्या ये एक एनिमल है? सो द बॉय हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, ही सेज यस इट इज, मतलब हाँ ये एक एनिमल है. ओके, देन अच्छा चलो एक क्लू मिल गया कि ओके ये एनिमल है. अब एनिमल या तो बिग होगा या स्मॉल होगा, टॉल होगा या शॉर्ट होगा. तो सबसे पहले तो ये पता चल गया एनिमल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड उसने फिर क्या सोचा, उसने उसके साइज के बारे में सोचा. ठीक है, कि इधर द एनिमल इज बिग और स्मॉल, या बड़ा होगा या छोटा होगा. तो सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड, इज इट अ बिग एनिमल? उसने पूछा इज इट अ बिग एनिमल, और यू कैन ऑल्सो आस्क इज इट अ बिग और अ स्मॉल एनिमल. इसने पूछा इज इट अ बिग एनिमल, सो ही सेज यस इट इज, क्योंकि उसने क्या सोचा है, उसने एक एलिफेंट के लिए क्लू दिए उसको. तो जब व्हेन ही आस्क्ड इट इज अ बिग एनिमल, ही सेड यस इट इज, मतलब हाँ ये बड़ा एनिमल है. ओके, अभी नाउ दिस बॉय ही इज गेसिंग कि अच्छा बड़े एनिमल्स में क्या क्या हो सकता है. और तो पहले उसके दिमाग में क्या आया, ही थॉट ऑफ हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस आई एम श्योर कहीं पिक्चर में देखा होगा आपने, फोटोग्राफ देखी होगी, जिसको हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा. इट इज वेरी बिग, ह्यूज, बहुत बड़ा होता है, पानी में रहता है. एंड इसका जब व्हेन इट ओपन्स इट्स माउथ, इतना बड़ा सा ह्यूज सा मुंह खुल जाता है. बट वेरी सरप्राइजिंगली दिस एनिमल इज नॉट अ कार्निवोर. ये भी फ्लैश नहीं खाता है. ठीक है, इट इज अ वेजिटेरियन एनिमल. इतना बड़ा सा है देखने में, इतना बड़ा सा इसका मुंह खुल जाता है. इट लिव्स इन वाटर बट इट डज नॉट ईट फ्लैश. ठीक है, तो उसने पूछा इज इट अ हिप्पोपोटामस? हिप्पोपोटामस है, माने ये क्या हिप्पोपोटामस है? तो देन ही सेज नो इट इज नॉट. तो जो क्वेश्चन का आंसर सही है, ही इज सेइंग यस इट इज, एंड जिस क्वेश्चन का आंसर वो रॉन्ग गेस कर रहा है, ही सेज नो इट इज नॉट, नहीं ये हिप्पोपोटामस नहीं है, इट इज नॉट. ओके, देन अगेन ही थिंक्स ऑफ सम अदर बिग एनिमल्स. तो उसने फिर वेल के बारे में सोचा. वेल भी बहुत बड़ी होती है. इनफैक्ट वेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. ठीक है, जो ब्लू वेल होती है, वेल भी बहुत सारी होती है, वेल जो ब्लू वेल होती है, दैट इज वेल जो फिश है, दैट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, ऑन अर्थ. लैंड नहीं, ऑन अर्थ, धरती पे. एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, मतलब जमीन पे जो सबसे बड़ा एनिमल है वो एलिफेंट है. बट इस पृथ्वी पे, इस पूरी धरती पे सबसे बड़ा एनिमल जो है दैट इज वेल. ओके, तो फिर उसने वेल सोचा. उसने पूछा इज इट अ वेल? सो अगेन ही सेज नो इट इज नॉट. फिर उसका क्वेश्चन, उसका आंसर गलत हो गया. ठीक है, नाउ सिंस अब उसको इतना पता चल गया है कि यस इट इज अ बिग एनिमल, सो ही इज थिंकिंग अबाउट ऑल द बिग एनिमल्स. तो बिग एनिमल्स में नॉर्मली क्या होता है, अगर बिग एनिमल बोलेंगे तो वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट दीज एनिमल्स ओनली, जो कि बहुत बड़े होते हैं. देन फिर उसने सोचा कि अच्छा हिप्पोपोटामस भी नहीं है, वेल भी नहीं है. सो फिर उसने एक और गेस किया. उसने पूछा कि हैव आई सीन दिस एनिमल? क्या मैंने ये एनिमल देखा है? तो दिस बॉय सेज यस यू हैव, मतलब तुमने देखा है. ठीक है, हिप्पोपोटामस ऐसे तो हमें नहीं दिखता, मे भी कभी सर्कस वगैरह में दिख जाता है. वेल भी हमें ऐसे नहीं दिखती है, सी में होती है वेल, हमें ऐसे तो कहीं नहीं दिखती है. बट एलिफेंट्स है, हम पिक्चर्स में भी, हम फोटोग्राफ्स में भी एलिफेंट्स वेरी कॉमन दिखाई पड़ जाते हैं. एंड देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे एनिमल्स बहुत आना जाना करते हैं कई बार, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में. कुछ प्लेसेस है जहाँ पे वो मेन सिटीज में कई बार फॉरेस्ट वगैरह से एलिफेंट आ जाते हैं, स्पेशली इन असम. ठीक है, तो उसने पूछा कि हैव आई सीन दिस एनिमल? क्या मैंने ये एनिमल देखा है? तो ही सेज, द अदर बॉय सेज यस यू हैव. नाउ अब उसने गैस किया कि बिग एलिफेंट्स में हिप्पोपोटामस भी नहीं है, वेल भी नहीं है. बिग एलिफेंट्स में अब क्या क्या और बचे हैं? एंड देन उसको एक और क्लू मिल गया कि यस ही हैज सीन दैट एनिमल. तो फिर उसने पूछा इज इट एन एलिफेंट? तो हिज फ्रेंड सेज यस इट इज. ओके, so talk time, that is to make you speak small sentences. ठीक है, these are all small sentences. Is it an animal? Yes it is. Is it a big animal? अगर big नहीं होता, अगर उसने कोई small तो no. तो ठीक है, तो next question पूछ सकते थे, is it a small animal? Yes. अभी small animal में
आगे और भी जो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि इज इट अ स्क्विरल, इज इट अ रैबिट, ठीक है. सो दिस एक्सरसाइज इज मेंट टू मेक यू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे जिससे आप सेंटेंसेस बोल सको. जैसे ये सारे सेंटेंसेस दीज आर वेरी स्मॉल. इज इट एन एनिमल? यस इट इज. इज इट अ व्हेल? नो इट इज नॉट. ठीक है. सो दिस गेम यू कैन प्ले विथ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर ऑल्सो. यू कैन आस्क योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, आपको कुछ एक हिंट दे, आप पहले आंसर करो, देन यू गिव देम अ हिंट एंड देन आस्क देम टू आंसर. Okay children, so I hope this is clear. In tomorrow's class, before starting with writing skill, I will once again explain this. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.